ابھی رمضان کا مہینہ آ رہا، دیکھیے گا کیا حال ہوگا جب لوگ تراویح پڑھیں گے. تو عادت نہیں ہے رات میں جاگنے کی، اور امام صاحب حافظ صاحب جب لمبی قرات کریں گے، پورا قرآن ان کو پڑھنا ہے بھائی، سنانا ہے، تو یہاں وہ یعلمون اور تعلمون کے علاوہ کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا. آپ پڑھیں گے ایسے پڑھیں گے، اور وہ پڑھ رہے ہیں سورہ فاتحہ تک تو گاڑی صحیح چلتی ہے. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. آمین. ہو گیا. اب یہاں تک تو گاڑی صحیح چلتی ہے حافظ کی. اس کے بعد الف لام میم. اب راجدھانی ایکسپریس ہوئی یہاں سے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. آخری والا جملہ سمجھ میں آتا ہے کیونکہ اس کو بیچارے کو 2 پارے پڑھنا ہے، 26 تاریخ کو 27 تاریخ کو، اور کہیں 10 دن میں ختم کرنا ہوگا تو اور کبھی کبھی تو ایک ہی رات میں کہیں ختم کرنا پڑتا ہے. آفس والے لوگ ہیں بیچارے، انہوں نے کرائے کا ایک ٹٹو بلایا، ایک ہی رات میں پڑھتے، ہم لوگ 29 دن 30 دن نہیں پڑھ پائیں گے. اب وہ جس کو ایک ہی رات میں ختم کرنا ہو اس کی سپیڈ کیا ہوگی؟ جس کو 29 دن میں ختم کرنا وہ تو یہ ہے ینفقون یعلمون تعلمون، اور جس کو ایک ہی دن میں ختم کرنا ہے اس کا حل کیا ہوگا؟ سمع اللہ اکبر، سمع اللہ، یہ چل رہی ہوتی راجدھانی ایکسپریس. اور یہاں پر کچھ لوگ ہوں گے جو ایسے نیت باندھے ہوں گے، اب سو رہے ہوں گے، پھر ہاتھ باندھ لیں گے، کیونکہ یہاں بوجھ پڑتا ہے، ایکسرسائز ہے یہ ہاتھ کی. بہت سے لوگ یہاں باندھیں گے وہ ہاتھ گر ہی نہیں سکتا. نوٹ کر لو، ہاتھ نہیں گرے گا. اللہ اکبر الحمدللہ رب العالمین. گردن جھکے گی ان کی، ہاتھ نہیں چھوٹ سکتا کیونکہ پازیٹیو ریزسٹنس نہیں یہ ہوگا، لیکن ہاتھ نہیں چھوٹے گا. کیوں؟ کیونکہ یہاں وزن نہیں، ایکسرسائز نہیں ہے. ہاتھ ہردیا نمہ. ہے ارجن جب ایشور کی پوجا کرنے کے لیے کھڑے ہو تو اپنے دونوں ہاتھوں کو ہردے سینے پر رکھ لو. لگتا ہے کرشن جی بھی اہل حدیث تھے، ایسا محسوس ہو رہا ہے. سینے پہ رکھ لو. ہندو بھائی ہمیشہ یاد رکھیے سینے ہی پہ ہاتھ رکھتے ہیں کہ نہیں رکھتے؟ پوجا کرتے تو ایسے رکھتے ہیں، ہم لوگ ایسے رکھتے ہیں، لیکن رکھیں گے سینے پر. کیوں؟ ان کے دھرم میں بھی لکھا ہے ہردیا سینے پر، کیونکہ بھکتی پوجا دل سے ہوتی ہے. کوئی بھی پوجا پیٹ سے نہیں ہوتی. اب پیٹ کے لیے لوگ کرنے لگے ہیں وہ الگ بات ہے. اب پیٹ کے لیے کرنے لگے، پیٹ کے لیے تو جھاڑ پھونک بھی کرنے لگے. تمباکو والا پان کھایا ہوا ہے، مولوی صاحب میرے بیٹے کو بخار آیا تو دم کر دو پان بھی کھاتا جا رہا، سورتی والا تمباکو بھی، اور پھو پھو کرتا بھی جا رہا. تو پیٹ کے لیے اب عبادت ہو جائے وہ ایک الگ بات ہے، لیکن عبادت دل سے ہوتی ہے. کرشن جی نے کہا ارجن سینے پہ ہاتھ رکھ لو. ہم لوگ بھی سینے پر ہاتھ باندھ لیتے ہیں. اوم بھوبھربھوہ سواہا. بھول چوک میں ہم سے جو غلطی ہو گئی ہو ایشور ہے بھگوان ہم کو معاف کر دینا، چھما کر دینا، سواہا کر دینا ہمارے پاپ کو. ہم لوگ بھی کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین. اے اللہ ہم دل سے گواہی دیتے ہیں کہ ساری تعریف تیرے ہی لیے ہے. الرحمن الرحیم، دل سے گواہی دیتے ہیں جو بڑا ہی مہربان انتہائی رحم کرنے والا ہے. مالک یوم الدین، ہم دل سے تجھے قیامت کے دن کا پورا پورا مالک مانتے ہیں. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اے اللہ ہم دل سے اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ تیرے علاوہ ہم کسی کی عبادت نہیں کرتے اور تیرے علاوہ کسی سے ہم مدد طلب نہیں کرتے، تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور مدد بھی تجھ سے طلب کرتے ہیں. اے اللہ اتنی لمبی چوڑی جو دل سے ہم نے تیری تعریف کی ہے، اس تعریف کے بعد میری چند باتیں سن لے. اہدنا الصراط المستقیم. اے اللہ ہم دل سے صراط مستقیم مانگ رہے ہیں. اے اللہ ہمیں 72 سڑکوں پہ چلنے سے بچا لے. اے اللہ ہمیں حنفی شافعی مالکی حنبلی شیعہ سنی ہونے سے بچا لے. اے اللہ جو سیدھا راستہ ہو تیرا، تیرے حبیب کا، تیرا تیرے نبی کا، اے اللہ مجھے اسی صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما. فرقے کتنے ہیں؟ 72. اللہ کے نبی نے کہا میری امت میں 73 ہوں گے. بنی اسرائیل میں تھے 72، میری امت میں کتنے ہوں گے؟ 73. لیکن ان میں بڑے بڑے فرقے جانتے ہو کون سے ہیں؟ 4.
हनफी, शाफई, मालिकी, हम्बली। और आप ताज्जुब करेंगे, इब्ने माजा की रिवायत पढ़िए, अल्लाह के रसूल ने यह तो कहा कि मेरी उम्मत में 72, बनी इसराइल में 72 थे, मेरी उम्मत में 73 होंगे, लेकिन जब आपने सहाबा को समझाया तो एक सीधी लाइन खींचकर सिर्फ 4 लकीरें खींची, 2 इधर और 2 इधर। बहुत बड़ा इशारा था ये नबी अकरम का। 2 इधर खींची और 2 इधर, और इन दोनों पे लिखा एक सीधी लाइन, ये हो गई सीधी, एक इधर एक इधर, एक इधर एक इधर, ऐसे। अब कैसे बताऊं मैं आपको, समझ गए ना? जैसे हवाई जहाज होता है, सीधा ये सीधी लाइन, तो 2 इधर 2 इधर। इन चारों लाइन पर अल्लाह के नबी ने क्या लिखा? हाजा सबीलुश शैतान, हाजा सबीलुश शैतान, हाजा सबीलुश शैतान, हाजा सबीलुश शैतान। और सीधी जो लाइन खींची उस पर लिखा हाजा सिरातुम मुस्तकीम, ये सीधा रास्ता है, ये मेरा और मेरे साहबा का रास्ता है। ये दाएं बाएं, ये 4 सड़कें जो हमने बनाई हैं, ये सब शैतानी रास्ते हैं। मोहम्मद और मोहम्मद के साहबा का, कुरान और हदीस का एक ही रास्ता जो सीधा है, वन्ना हाजा सिराती मुस्तकीमन, और ये मेरा सीधा रास्ता है। 4 लाइनें खींचकर इशारा कर देना, यह बहुत बड़ी बात है मेरे भाइयों। मैंने पहले ही कहा था, यहां पर भी अक्लमंदों के लिए इशारा काफी है, इशारा काफी है। अक्लमंद हैं तो हमारे लिए इशारा काफी है। चलिए आगे चलिए। योगी पूरे शरीर का योग हो। अब देखिए, अल्लाहु अकबर, रुकू में गए, रीढ़ की हड्डी, कमर बिल्कुल सीधी कर लो। आप करना पड़ेगी, हम तो करते ही नहीं हैं। अल्लाहु अकबर, जब तक सीधी हो रही तब तक उठ गए। बाज हमारे उलमा ने लिखा है कि कमर इतनी सीधी हो जानी चाहिए कि अगर उसके ऊपर पानी से भरा हुआ बर्तन रखा जाए तो गिरने ना पाए, इतनी सीधी हो जाए बिल्कुल कि कोई चीज उस पर रखो तो गिरे नहीं। जब आप टाइट पकड़ेंगे और इस तरीके से जब रुकू करेंगे और सजदे की जगह पर आपकी नजर होगी, नीचे नहीं, सजदा, अरे नीचे क्या झांक के देख रहा है, सजदे की जगह पर होनी चाहिए निगाह, तो आपकी कमर बिल्कुल सीधी हो जाएगी। डॉक्टर मोरिस बुकाए, बहुत बड़े डॉक्टर गुजरे हैं अमेरिका के अंदर, इन्होंने लिखा अपनी किताब के अंदर, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ने जो रुकू बताया है, मुसलमान 5 वक्त नमाज पढ़ता है, अगर वैसा रुकू करने लगे जैसा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है, तो इस आदमी को कभी रीढ़ की हड्डी के दर्द और रीढ़ की हड्डी के कैंसर की बीमारी नहीं हो सकती। इतना बड़ा इलाज बता दिया अल्लाह के रसूल ने, लेकिन आज हो रही है बीमारी। इसका मतलब यह कि हमारे रुकू और सजदे सही नहीं है। समी अल्लाहु लिमन हमिदा, अल्लाहु अकबर कहकर जब आप सजदे में जा रहे हैं तो आपके दोनों पैरों की उंगलियां मुड़ी हुई होनी चाहिए, आपके दोनों पैर मिले हुए होना चाहिए। जब उंगलियां आपकी मुड़ी हुई होंगी तो उंगलियों से जो नस, जो रगें खिंचेंगी वो आपके दिमाग तक जा रही हैं, पूरे जिस्म की एक्सरसाइज। और जब आप सजदे में जाते हैं, इसीलिए सजदे को लंबा करने का हुक्म है। मेरा बंदा मेरे सबसे ज्यादा करीब तब होता है जब वो सजदे में होता है। लोग सजदा ज्यादा लंबा करते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदा इतना लंबा किया करते थे कि हजरत आयशा कहती हैं, जब रात की तारीकी में आप तहज्जुद में होते, सजदा करते, तो मुझे ऐसा लगता कि अल्लाह के रसूल सजदे में इंतकाल कर गए, उठेंगे ही नहीं। शायद अब आपको झंझोड़ना पड़ेगा, कहीं ऐसा तो नहीं कि अल्लाह के नबी का इंतकाल हो गया। इतना लंबा सजदा। और जब आदमी सजदे में जाता तो डॉक्टर मोरिस बुकाए कहते हैं, इंसान के जिस्म का पूरा खून उसकी रगों में, दिमाग की हर एक नस तक, हर एक रग तक पहुंच जाता है, जिससे उसको ब्रेन हेमरेज की बीमारी नहीं होती है और उसका दिमाग नॉर्मल रहता है, उसको ब्लड प्रेशर की बीमारी नहीं होती है, उसको टेंशन ज्यादा नहीं होते, इसलिए कि खून दिमाग में जितना पहुंचना चाहिए वो सजदे ही की हालत में पहुंचता है। मेरे भाइयों, ये नमाज पूरी एक मेडिकल साइंस से भरी हुई है। हमने एक बाबा रामदेव का एक योग देख रहा था मैं, योग, उसमें बाबा रामदेव ने बाकायदा इस बात का इकरार किया। मैं टीवी यूट्यूब चैनल लोगों के सामने बोल रहा हूं, रिकॉर्ड हो रहा है। बाबा रामदेव ने इस बात का इकरार किया था कि नमाज से बड़ा योग कोई है ही नहीं, नमाज सबसे बड़ा योग है। अगर कोई नमाज पढ़ने लगे तो उसको इस योग की जरूरत ही नहीं जो हम सिखा रहे। नमाज पूरा अरे जिसकी शुरुआत योगी से हुई हो, उससे बड़ा योग क्या हो सकता है? योगी,
पूरे शरीर का योग करने वाले बन जाओ, तब तुम्हारी पूजा हो। यहां तो हाल क्या है, हमारे हिंदू भाई अब इतना भी नहीं कर रहे। वैसे तो हिंदू धर्म में हाथ भी जोड़ लिए जाते हैं, अब तो इतना भी नहीं करते। अब तो नई नवेली बीवी बैठी हुई है मोटरसाइकिल पर, भिग मंगनी गाड़ी पे बैठे हुए हैं, लड़की के बाप ने इंटरनेशनल भिखारी समझ के दामाद को दे दी, ले जा, मेरी बेटी तो खुश रहेगी, तू भिखारी है तो क्या हुआ, चल दे दी। अब वो बेचारा अपनी बीवी को बिठाल के चला रहा, सामने हनुमान जी की मूर्ति, नहीं उठेगा, उतरेगा नहीं गाड़ी से, क्यों, जल्दी में है, नई बीवी है। लेकिन भगवान नाराज ना हो जाएं इसलिए खोपड़ी तो हिला देगा। 10 किलो की खोपड़ी हिला दी, बढ़ गया आगे, हाथ जोड़ना नहीं, ये नहीं हो रहा। मैं जब पाकिस्तान गया था प्रोग्राम के लिए, तो पहली मर्तबा मैं ट्रेन से गया था, उसके बाद 3 बार और गया हूं, तो वो मैं बाई प्लेन गया हूं। तो लाहौर तक तो मैं बस से गया था, वो जो चल रही थी पहले बस जो चली थी दिल्ली से लाहौर तक, समझौता जो अटल बिहारी वाजपेयी जी के दौर से शुरू हुई थी, तो उसके बाद चलती रही, उसमें गया था मैं। तो लाहौर से कराची तक जब ट्रेन पे गया तो वहाँ की ट्रेनें तो ऐसी थीं कि फ्री का पाउडर लगता था चेहरे पे, इतनी धूल उड़ती थी। बहरहाल पहुँचे तो हर स्टेशन पर एक मज़ार बना हुआ है। लाहौर से कराची तक 24 घंटे बल्कि 28 घंटे लगे थे मुझे पहुँचने में। तेज़ रू एक्सप्रेस थी वो, उसका नाम तेज़ रू एक्सप्रेस। उस एक्सप्रेस पे मैं बैठ के गया था, तो जैसे यहाँ हमारे हिंदू भाई मंदिरों के सामने हूँ हिलाते हैं, ऐसे ही वहाँ खिड़की वाली सीट के लिए लोग लड़ते हैं, मुसलमान लोग। और हर स्टेशन के ऊपर एक मज़ार बना हुआ है, और वो भी ऐसे ही जाते हैं, जो भी मज़ार गुजर रहा है, बाबा सर झुकाते हुए ऐसे कर रहे, बाबा मज़ार ऐसे, और गुजर रहे हैं। मैंने कहा ओफ, मैंने कहा सही जगह आया हूं तकरीर करने के लिए। हिंदुस्तान में इतना तो है कम से कम कि ट्रेन में बैठकर कोई आदमी अगर स्टेशन से कोई मज़ार गुजर रहा हो तो कम से कम यहाँ का मुसलमान ऐसे नहीं करता। ऐसे वो करता तो जिंदा लड़की को देख के करता है, लेकिन मज़ार को देख के नहीं करता है। ऐसा पाकिस्तान के हालात यहां से भी ज्यादा शिर्क और बिदात पर उससे भी ज्यादा। तो हम आपको जो बताना चाहते वो ये बताना चाह रहे हैं कि योग नहीं है, पूरा योग सिर्फ नमाज के अंदर है। और इसके बाद कृष्ण जी क्या कहते हैं, अर्जुन युजीत सततमात्मानम, इसको बराबर पकड़े रहना, इसको कभी छोड़ना नहीं। योगी युजीत सतत मातमानम, सतत पकड़े रहना, कभी मत छोड़ना। रहस्य स्थित था, अगर एक दिन भी छोड़ दोगे तो धर्म पे कायम नहीं रहोगे, एक दिन भी छोड़ दोगे तो धर्म पे कायम नहीं रहोगे। अल्लाह के रसूल ने भी तो यही कहा, जानबूझकर अगर नमाज छोड़ दोगे, कसदन मन तरक सलात मुतअम्मिदन फकत कफर, जिसने कसदन नमाज छोड़ दी, जानबूझकर छोड़ दी, उसने कुफ्र किया। अल्लाह के रसूल ने भी तो यही कहा कि धर्म पर कायम नहीं रहोगे। एक अल्लाह के सामने खड़े हो जाओ, इससे ज्यादा तौहीद और नमाज कहां मिलेगी।